Good morning, students. Today's lecture is based on gastrulation. In the previous class, I had taught you about cleavage. After cleavage, gastrulation occurs in the embryo. We are going to study the salient characteristics of gastrulation. First point. Cells formed during cleavage are given new positions and new neighbors. Remember these two words, new positions and new neighbors. Next, multi-layered body plan of the organism is established. I have already taught you that in cleavage, the embryo is single-layered, exception being mammals which have double-layered blastula. That is why it is known as blastocyst. Third point. Endodermal and mesodermal cells are brought inside of the embryo and ectodermal cells are spread to the outside surface. So, this we have to remember, students, that the movement of cells is occurring during gastrulation. And since this movement is occurring, this is known as morphogenetic movement. जो सेल मूवमेंट्स हो रही हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान, सेल्स की जो मूवमेंट हो रही है जिससे एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल सेल्स अंदर आ रहे हैं एम्ब्रियो में और एक्टोडर्मल सेल्स बाहर जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं morphogenetic movements. So, two important phenomena occur during gastrulation. The first important phenomena that occurs is that 3 germ layers are formed. 3 germ layers बनती हैं, ectoderm, mesoderm और endoderm. Next point, the stage is set for the interaction of these newly positioned tissues. This interaction between tissues is known as tissue interaction, proximate tissue interaction जिसे हम कहते हैं, या cell-cell communication. This I have already taught you in your previous lecture. सेल कम्युनिकेशन की वजह से ही मॉर्फोजेनेसिस होता है. मॉर्फोजेनेसिस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि सेल एक ऑर्डर में आते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न सेट होता है. अगर हम कह रहे हैं 3 लेयर्स बनेंगी तो एक्टोडर्म लेयर के सेल्स अलग आ जाएंगे, मेसोडर्म लेयर के सेल्स अलग पोजीशन लेंगे एंड एंडोडर्मल सेल्स. दिस इज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस. एक पैटर्न बनने को हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस. और इन मूवमेंट्स को, क्योंकि ये मॉर्फोजेनेसिस ला रही हैं, इसलिए हम इन मूवमेंट्स को कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. I am now going to tell you about the morphogenetic movements that occur during gastrulation. तो gastrulation के अंदर जो बेसिक morphogenetic movements होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे. ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये बेसिकली स्टूडेंट्स 5 टाइप्स की होती हैं, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के दौरान मॉर्फोजेनेसिस हो रहा है. एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो मॉर्फोजेनेसिस होता है इसमें जो नेबरिंग सेल्स की पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पोजीशन ऑफ द सेल्स इन द एम्ब्रियो, वो डॉर्सल साइड पे हैं, वेंट्रल साइड पे हैं, लेटरल साइड पे हैं, ये सब बहुत मायने रखता है. सो टाइप्स ऑफ सेल मूवमेंट्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन. The first type of movement is known as invagination. What do you mean by the word invagination? Invagination means infolding. Try to understand it like this, students. अगर आपके पास एक गुब्बारा भरा हुआ फूला हुआ है, it is filled with air. When you try to press your finger in that balloon, inflated balloon, जब एक फूले हुए गुब्बारे में आप अपनी फिंगर डालने की कोशिश करते हैं तो you have to pressurize your finger. आपको फिंगर पे कुछ फोर्स लगाना होता है. That is what is called as invagination. Invagination means जब अंदर की तरफ mesodermal and endodermal cells मूव करते हैं तो वो फोर्स से मूव कर रहे हैं. That is called invagination. The second type of movement is known as involution. Involution means rolling in. Rolling in का मतलब क्या होता है students? The basic difference is that
इन्वोल्यूशन में भी सेल्स की मूवमेंट अंदर हो रही है, मगर वो जैसे आप बचपन में स्लाइड करते थे गार्डन में, सेल्स एक दूसरे के पीछे स्लाइड कर रहे हैं. यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी प्रेशर, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है. नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, सिंपली सेल्स आर रोलिंग इन. दैट इज नोन एज इन्वोल्यूशन. The third movement is known as ingression. Now, what does the word ingression mean? Ingression means migration of individual cells. जो पहले की दो movements थी, infolding and rolling in, that is invagination and involution. इसमें एक एक सेल मूव नहीं कर रहा था, bulk of cells were moving. जबकि इंग्रेशन में हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसमें एक एक सेल का माइग्रेशन हो रहा है. इंग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है चिक एम्ब्रियो. इन सब को आप डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट विल बी बेस्ड ऑन कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, राइट फ्रॉम फिशेस टू मैमल. आप गैस्ट्रुलेशन का कंपैरिजन पढ़ेंगे तो हर एक का एग्जाम्पल हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे. अभी सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं गैस्ट्रुलेशन के वो समझ रहे हैं. तो ये हमारी 3 मूवमेंट्स हो गई, इन्वैजिनेशन, इन्वोल्यूशन और इंग्रेशन. जो हमारी चौथी मूवमेंट है उसको हम कहते हैं डिलैमिनेशन. डिलैमिनेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? स्प्लिटिंग ऑफ वन शीट ऑफ सेल्स इनटू 2 शीट्स. इसको ऐसे समझिए जैसे जीन्स में या पैंट्स में चेन होती है. जब आप चेन लगाते हैं तो दोनों साइड्स एक साथ आ जाते हैं. जब आप चेन ओपन करते हैं तो दोनों साइड स्प्लिट होते हैं. इसी को ही हम डिलैमिनेशन कहते हैं. यहाँ पूरी एक लेयर ऑफ सेल्स जो है वो दूसरी लेयर ऑफ सेल्स से स्प्लिट हो रही है, अलग हो रही है. इंग्रेशन में इंडिविजुअल सेल्स का माइग्रेशन हो रहा है, डिलैमिनेशन में स्प्लिटिंग हो रही है. उसके बाद जो 5th एंड द लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट है दैट इज नोन एज एपीबोली. एपीबोली का मतलब होता है expansion of one cell sheet over another. Normally एपीबोली जो होती है वो एक्टोडर्मल सेल्स की होती है. एक्टोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो के बाहर अरेंज होते हैं, तो उसमें एपीबोली होती है. और जो पहले की 4 मूवमेंट्स हैं जैसे इन्वैजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन और डिलैमिनेशन, ये इनको हम एम्बोली कहते हैं. एम्बोली का मतलब होता है अंदर की तरफ मूवमेंट ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. रिमेंबर स्टूडेंट्स, एपीबोली इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म एंड एम्बोली जिसमें इन्वैजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन और डिलैमिनेशन आ रहा है दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म. सो आई एम वेरी क्लियर कि गैस्ट्रुलेशन में स्टूडेंट्स 3 जर्म लेयर्स बनती हैं और ये तीनों जर्म लेयर्स किसकी वजह से बन रही हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से. और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं? 5 टाइप्स की, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एपीबोली एंड एम्बोली. सो स्टूडेंट्स समराइज अगर हम करें तो गैस्ट्रुलेशन में tissues move relative to each other and relative to their positions in the embryo. You have to remember this कि जितना भी मूवमेंट हो रहा है टिश्यूज का वो कैसा हो रहा है. एक तो उनके नेबर में कौन से सेल्स हैं वो मायना रखता है और दूसरा उनकी पोजीशन एम्ब्रियो में. ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है. दूसरी बात, हम गैस्ट्रुलेशन को सेकेंड मॉर्फोजेनेटिक स्टेप भी कहते हैं. सेकेंड मॉर्फोजेनेटिक स्टेप इसलिए क्योंकि जो हमारा फर्स्ट मॉर्फोजेनेटिक स्टेप है वो है ब्लास्टुला का बनना. मैंने आपको पहले भी बताया है स्टूडेंट्स कि ब्लास्टुला में भी सेल्स एक लेयर में अरेंज हो रहे हैं. जहाँ पे भी कोई पैटर्न बन रहा है उसको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस.
और मॉर्फोजेनेसिस में आपको याद रखना है सेल मूवमेंट्स होंगी, इसी वजह से सेल का पैटर्निंग होता है। अब जब ये सेल का पैटर्निंग हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसके लिए प्रोटीन ग्रेडियंट्स होते हैं। ये प्रोटीन ग्रेडियंट्स भी आपको पढ़ने हैं और पिछली क्लास में मैंने आपको ये प्रोटीन ग्रेडियंट्स भी पढ़ाए थे। इफ़ यू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट पैराक्राइन फैक्टर्स, जक्स्टाक्राइन फैक्टर्स, और जो पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स भी बताए गए थे आपको, जैसे FGF, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली, हेजहॉग फैमिली, WNT फैमिली, इन सब के एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं। और जो जक्स्टाक्राइन फैक्टर्स होते हैं उसका एग्जाम्पल नॉच फैमिली। तो जहाँ पे भी प्रॉक्सिमेट टिश्यू इंटरैक्शन वर्ड आता है, यानी सेल सेल कम्युनिकेशन वर्ड आता है, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई प्रोटीन ग्रेडियंट ज़रूर काम कर रहे होंगे। और ये प्रोटीन ग्रेडियंट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, इनको हम मॉर्फोजिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये मॉर्फोजेनेसिस लाते हैं। और आपको बेसिकली ये जो मॉर्फोजिन्स हैं 2 टाइप के, पैराक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन, ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट सेल्स मूव डिफरेंट अमाउंट्स and change shape by different amounts. You have to remember this कि सारे सेल्स का मूवमेंट ना ही एक डायरेक्शन में होता है, ना ही लेंथ ऑफ मूवमेंट सारे सेल्स की सेम होती है। सेल्स के मूवमेंट की जो लेंथ होती है वो भी अलग अलग होती है और उनका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होता है वो भी अलग अलग होता है। तो गैस्ट्रुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। Now one thing in the end, before ending this lecture, I have to tell you कि हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर्स बनी हैं। एक और बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही बॉडी एक्सिस भी बनती है। What do you mean by body axis? आगे चल के जो ऑर्गन्स बनेंगे उसके लिए ये बॉडी एक्सिस मायने रखती है। ये जो बॉडी एक्सिस होती हैं ये 3 होती हैं आप वर्टिब्रेट्स की बॉडी में, एंटीरियर, पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पे हमेशा हेड ही क्यों होता है और पोस्टीरियर एंड पे टेल ही क्यों होता है? तो पहली बॉडी एक्सिस है एंटीरियर पोस्टीरियर। दूसरी बॉडी एक्सिस है डॉर्सल वेंट्रल। डॉर्सल साइड पे हमेशा नोटोकॉर्ड ही क्यों होती है और वेंट्रल साइड पे हमेशा हार्ट ही क्यों होता है? और तीसरी बॉडी एक्सिस होती है लेफ्ट राइट। लेफ्ट साइड ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं राइट साइड ऑफ ऑर्गन से। तो ये जो 3 बॉडी एक्सिस बन रही हैं, अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करें क्योंकि आपके वर्टिब्रेट्स ही सिलेबस में है, तो ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही बनती हैं। अगर आप इनवर्टिब्रेट्स, जिसका एक एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला, अगर उसकी बात करें तो ये बॉडी एक्सिस उसमें एग में पहले ही बन जाती है। क्योंकि हमें वर्टिब्रेट्स पे एम्फेसिस देना है तो हम ये कहेंगे कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर्स बन रही हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हो रही हैं, प्लस हमारी 3 इंपॉर्टेंट बॉडी एक्सिस बन रही हैं। एम आई वेरी क्लियर कि बॉडी एक्सिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एंटीरियर पोस्टीरियर, डॉर्सल वेंट्रल एंड लेफ्ट राइट एक्सिस ऑफ द बॉडी। आपके वेरियस ऑर्गन्स की पोजीशनिंग कैसे हो रही है। सो टू समराइज स्टूडेंट्स, आज हमने गैस्ट्रुलेशन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं और क्या होता है गैस्ट्रुलेशन में ये देखा है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, इन 5 में गैस्ट्रुलेशन किस तरीके से होता है और इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे।